Hello students, good morning. Welcome to SS Only classes. Student, we were reading chapter first, Mountains, Rivers and Lakes of our Know and Grow with Derek GK book. In our last video, our topic was Mountains, Rivers and Lakes. So student, we have read about mountains, rivers and lakes in our last video and included this topic. We have also read and solved exercise A, answered these questions of this chapter first in our FAIR GK notebook in our last video. And students, today our topic is also same. Today's our topic is mountains, rivers and lakes. Included this topic, students. Today we will read and solve exercise B, answer the following questions of this chapter first in our FAIR GK notebook in our today's class. Okay, so all students pay partial attention class and listen to my words clearly, because today we are going to read and solve some important questions which is related to our topic mountains, river and lakes. Okay, so all students, let's see exercise B. Chapter number is chapter first and chapter name is mountains, rivers and lakes. Mountains means parvat, rivers means nadia and means or lakes means jhili. Mountains, rivers and lakes, it means parvat, nadia or jhili. Okay, let's exercise B. Your exercise B is answer the following questions. Okay, answer means उत्तर, the following means निम्नलिखित, questions means प्रश्नों, answer the following questions, it means निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Okay, so students, let's see first number question of this exercise B. Your first number question is which river side get diamonds. Okay, which means कौन सी, river means नदी, side means किनारा, get means मिलता है या प्राप्त होता है, diamonds means हीरे. Okay, which river side get diamonds, it's mean किस नदी के किनारे हीरे पाए जाते हैं. Okay, तो स्टूडेंट्स ऐसी कौन सी रिवर है, ऐसी कौन सी नदी है जिसके साइड पे, जिसके किनारे पे डायमंड्स पाए जाते हैं, हीरे पाए जाते हैं. ओके, so student, let's see first number answer. Your first number answer is the Krishna river side get diamonds. Okay, the Krishna river, it's mean कृष्णा नदी, side means किनारे. Okay, get means प्राप्त होते मिलते हैं, diamonds means हीरे. Okay, the Krishna river side get diamond, it's mean कृष्णा नदी के किनारे हीरे पाए जाते हैं या कृष्णा नदी के किनारे हीरे मिलते हैं. क्लियर? Let's see second number question. Students, your second number question is which lake is called jewelry of Srinagar. Okay, which means कौन सी, lake means student झील, it means है, called means कहते, ज्वेलरी means आभूषण या गहना, ऑफ means का श्रीनगर. ओके, ज्वेलरी ऑफ श्रीनगर, इट्स मीन श्रीनगर का गहना या श्रीनगर का आभूषण. ओके, तो स्टूडेंट्स योर सेकंड नंबर क्वेश्चन इज विच लेक इज कॉल्ड ज्वेलरी ऑफ श्रीनगर. इट्स मीन किस लेक को ज्वेलरी ऑफ श्रीनगर कहा जाता है. वी कैन से दैट किस झील को श्रीनगर का गहना या श्रीनगर का आभूषण कहा जाता है. ओके, सो स्टूडेंट्स योर सेकंड नंबर आंसर इज द डल लेक इज कॉल्ड ज्वेलरी ऑफ श्रीनगर. ओके, द डल लेक, इट्स मीन कि डल लेक. ओके, डल झील, इट मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते हैं, ज्वेलरी ऑफ श्रीनगर, इट्स मीन्स श्रीनगर का गहना या श्रीनगर का आभूषण. ओके, सो स्टूडेंट्स, एक हमारी डल लेक होती है, डल झील होती है. ओके, उसे श्रीनगर का ज्वेलरी, ओके, श्रीनगर का गहना या श्रीनगर का आभूषण कहा जाता है. ओके, लेट्स सी थर्ड नंबर क्वेश्चन. योर थर्ड नंबर क्वेश्चन इज विच लेक इज कॉल्ड क्राउन ऑफ कश्मीर. ओके, विच मीन्स कौन सी, लेक में झील, इट मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते. ओके, क्राउन मीन्स स्टूडेंट्स होते हैं मुकुट, ऑफ मीन्स का कश्मीर. ओके, क्राउन ऑफ कश्मीर, इट्स मीन कश्मीर का मुकुट. ओके, सो स्टूडेंट्स योर थर्ड आंसर इज विच लेक इज कॉल्ड क्राउन ऑफ कश्मीर. इट्स मीन किस लेक को, किस झील को कश्मीर का मुकुट कहा जाता है. ओके, किस झील को कश्मीर का मुकुट कहा जाता है. ओके, सो स्टूडेंट योर थर्ड आंसर इज द डल लेक इज कॉल्ड क्राउन ऑफ कश्मीर. ओके, द डल लेक, इट मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते हैं, क्राउन ऑफ कश्मीर, इट्स मीन कश्मीर का मुकुट. ओके, सो स्टूडेंट्स एंड योर थर्ड आंसर इज द डल लेक को कश्मीर का मुकुट कहा जाता है. ओके, सो स्टूडेंट, जो डल लेक होती है ना, वी कॉल डल लेक ज्वेलरी ऑफ श्रीनगर एंड क्राउन ऑफ कश्मीर. हम डल लेक को, डल झील को श्रीनगर का आभूषण या श्रीनगर का गहना और कश्मीर का मुकुट कहते हैं. श्रीनगर की डल लेक क्या होती है, ज्वेलरी होती है, उसका आभूषण होती है, और कश्मीर का क्राउन होती है, कश्मीर का मुकुट होती है. ओके, लेट्स सी फोर नंबर क्वेश्चन. फोर नंबर क्वेश्चन इज वाई पुष्कर लेक इज फेमस. ओके, वाई मीन्स क्यों, पुष्कर लेक मीन्स पुष्कर झील, इट मीन्स है, फेमस मीन्स प्रसिद्ध. वाई पुष्कर लेक इज फेमस, इट्स मीन पुष्कर झील क्यों प्रसिद्ध है. सो स्टूडेंट्स योर फोर नंबर आंसर इज द पुष्कर लेक इज फेमस फॉर गुरुद्वारास फॉर गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह. ओके, द पुष्कर लेक, इट्स मीन पुष्कर झील, इट मीन्स है, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, फॉर मीन्स के लिए, गुरुद्वारास मीन्स गुरुद्वारा. ओके, जैसे हमारे टेम्पल होते हैं ना, जहाँ पे हम वर्शिप करने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं ना, वैसे जो पंजाबी लोग होते हैं ना, तो उनके यहाँ क्या होते हैं, उनके टेम्पल को बोलते हैं गुरुद्वारा. ओके, तो फॉर गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह. ओके, तो स्टूडेंट जो पुष्कर लेक है वो किसके लिए फेमस है, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारे के लिए फेमस है. ओके, तो पुष्कर लेक गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारे के लिए प्रसिद्ध है. क्लियर? लेट्स सी फाइव नंबर क्वेश्चन. फाइव नंबर क्वेश्चन इज विच रिवर इज कॉल्ड फादर ऑफ रिवर्स. ओके, विच मीन्स कौन सी, रिवर मीन्स नदी, इट मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते, फादर ऑफ रिवर्स, इट्स मीन नदियों का पिता. ओके,
फादर मीन्स पिता, ऑफ मीन्स का, रिवर्स मीन्स नदियाँ, नदियों का पिता। ओके, किस नदी को फादर ऑफ रिवर कहा जाता है? इट्स मीन नदियों का पिता कहा जाता है। ओके, फादर ऑफ रिवर इट्स मीन नदियों का पिता। तो स्टूडेंट ऐसी कौन सी रिवर है जिसे हम फादर ऑफ रिवर्स बोलते हैं, नदियों का पिता बोलते हैं? सो स्टूडेंट्स योर 5 नंबर आंसर इज द इंडस रिवर इज कॉल्ड फादर ऑफ रिवर्स। ओके, द इंडस रिवर इट्स मीन इंडस नदी, इट मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते हैं फादर ऑफ रिवर, इट्स मीन नदियों का पिता। ओके, तो स्टूडेंट्स इंडस नदी को, ओके INDUS, इंडस रिवर को, इंडस नदी को हम फादर ऑफ रिवर्स बोलते हैं, नदियों का पिता बोलते हैं। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच इज़ द 5th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? ओके, विच मीन्स कौन सी, इच मीन्स है दी 5th मीन्स 5वीं, लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा लंबी, रिवर मीन्स नदी, ऑफ मीन्स का, इंडिया मीन्स भारत। विच इज़ द 5th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? इट्स मीन भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी कौन सी है? ओके, सो स्टूडेंट्स 6 नंबर आंसर इज द नर्मदा इज़ द 5th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। द नर्मदा, ओके, नर्मदा इट्स अ रिवर, एक नदी है। ओके, इट मीन्स है द 5th मीन्स 5वीं, लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा लंबी, रिवर मीन्स नदी, ऑफ मीन्स का, इंडिया मीन्स भारत। ओके, सो स्टूडेंट्स योर 6 नंबर आंसर इज द नर्मदा इज़ द 5th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इट्स मीन नर्मदा भारत की 5वीं सबसे ज़्यादा लंबी नदी है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। योर 7 नंबर क्वेश्चन इज विच माउंटेन्स आर कॉल्ड द ब्लू माउंटेन्स? विच मीन्स कौन सा, माउंटेन्स मीन्स पर्वत, आर मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते हैं, द ब्लू माउंटेन्स, ब्लू मीन्स नीला, माउंटेन्स मीन्स पर्वत। ओके, द ब्लू माउंटेन्स मीन्स नीले पर्वत। विच माउंटेन्स आर कॉल्ड द ब्लू माउंटेन? इट्स मीन किन पर्वतों को नीले पर्वत कहा जाता है? ओके, ऐसा कौन सा माउंटेन, ऐसा कौन सा पर्वत है जिसे ब्लू माउंटेन्स हम लोग बोलते हैं, नीला पर्वत बोलते हैं? ओके, सो स्टूडेंट योर 7 नंबर आंसर इज नीलगिरी माउंटेन्स आर कॉल्ड द ब्लू माउंटेन्स। ओके, नीलगिरी माउंटेन्स इट्स मीन नीलगिरी पर्वत, आर मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते हैं, द ब्लू माउंटेन्स मीन्स नीले पर्वत। ओके, तो स्टूडेंट नीलगिरी माउंटेन्स को हम ब्लू माउंटेन्स बोलते हैं, इट्स मीन नीलगिरी पर्वत को हम नीले पर्वत बोलते हैं। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। योर क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज अ पीक? ओके, व्हाट मीन्स क्या, इट मीन्स है, आ मीन्स एक पीक। हियर द मीनिंग ऑफ पीक, पीक मीन्स स्टूडेंट्स होता है चोटी। व्हाट इज अ पीक? इट्स मीन एक चोटी क्या है? सो स्टूडेंट्स योर 8 नंबर आंसर इज द पॉइंटेड टॉप ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड अ पीक। ओके, दी पॉइंटेड टॉप इट्स मीन कि नुकीला सिरा। ओके, ऑफ मीन्स का, आ मीन्स एक, माउंटेन्स मीन्स पर्वत, इट मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते, आ मीन्स एक, पीक मीन्स चोटी। ओके, दी पॉइंटेड टॉप ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड अ पीक। इट्स मीन किसी पर्वत के नुकीले सिरे को चोटी कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स जो माउंटेन होता है ना वो अपोजिट वी शेप का होता है ना, उल्टी वी के साइड का होता है, तो उसका जो पॉइंटेड टॉप होता है, इसमें नुकीला सिरा होता है, उसे हम बोलते हैं पीक, PEAK, पीक मीन्स चोटी। ओके, तो किसी पर्वत के नुकीले सिरे को पीक बोलते हैं, किसी पर्वत के नुकीले सिरे को चोटी कहते हैं। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज भी। ओके, सो स्टूडेंट्स योर क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज अ समिट? ओके, व्हाट मीन्स क्या, इट मीन्स है, आ मीन्स एक, समिट, समिट मीन्स स्टूडेंट्स होता है शिखर। व्हाट इज अ समिट? इट्स मीन शिखर क्या है? क्लियर? So students, your 9 number answer is the highest point of a mountain is called the summit. Okay, the highest point it means सबसे ज़्यादा ऊंचा बिंदु। ओके, सबसे उच्चतम बिंदु, सबसे ज़्यादा ऊंचा बिंदु, ऑफ मीन्स का, आ मीन्स एक, माउंटेन मीन्स पर्वत, इट मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते हैं, दी समिट, समिट मीन्स शिखर। ओके, तो स्टूडेंट्स योर 9 नंबर आंसर इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड दी समिट। इट्स मीन कि किसी पर्वत की उच्चतम बिंदु को, ओके, या किसी पर्वत के सबसे ज़्यादा ऊंचे बिंदु को, उच्चतम बिंदु को शिखर कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट कोई अगर माउंटेन है, कोई अगर पर्वत है, उसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा ना, सबसे ज़्यादा ऊंचा जो बिंदु होगा, उच्चतम बिंदु होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम समिट, इट्स मीन शिखर। क्लियर? So students, let's see all these questions are again. Your first number question is which river side get diamonds? Your answer is the Krishna river side get diamonds. Okay. Your second number question is which lake is called jewelry of Srinagar? Your second number answer is the Dal lake is called jewelry of Srinagar. Your third number question is which lake is called crown of Kashmir? Your third number answer is the Dal lake is called crown of Kashmir. Your fourth number question is why Pushkar lake is famous? Your fourth number answer is the Pushkar lake is famous for Gurudwara, so for Guru Nanak and Guru Gobind Singh. Isn't your 5 number question is which river is called father of rivers? Your 5 number answer is the Indus river is called fathers of rivers. Okay, isn't father of river किसे बोलते हैं? Indus river को. Clear? Let's see question number 6. Your question number 6 is which is the 5th longest river of India? Your 6th number answer is the Narmada is the 5th longest river of India. Your 7 number question is which mountains are called the blue mountains? So students, your 7 number answer is Nilgiri mountains are called the blue mountains. Students, your 8 number question is what is a peak? Your 8 number answer is the pointy top of a mountain is called a peak. Your 9 number question is what is a summit? Okay, so students, your last 9 number answer is the highest point of a mountain is called the summit. Okay, so students, we have read and solved this exercise B of this chapter first, and I hope you must have understood this exercise B. You have no problem in any answer of this exercise B. So students, today's classwork is that complete exercise B of this chapter first in your Fat GK notebook. It's a 2 days classwork, and so your homework is that learn exercise B of this chapter first from your Fat GK notebook. It's a 2 days homework. Okay, so students, आपका classwork है कि आपको exercise B
ओके अपनी फैजी के नोटबुक में कंप्लीट करनी। ओके फर्स्टली एज इट इज़ आपको चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, एक्सरसाइज भी, हेडिंग, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस नोट डाउन करना है। ओके फिर क्वेश्चन नोट करेंगे। ओके आंसर के लिए लाइन लीव कर देंगे एंड आफ्टर सेंस राइट डाउन ऑल आंसर टू द गिवन क्वेश्चंस बाय आंसर। अपने मन से सारे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर राइट डाउन करेंगे एंड आफ्टर सेंस मैच आंसर फ्रॉम द गिवन आंसर सीट। ये जो आंसर सीट मैं दे रही हूँ इससे आपको अपने आंसर्स मैच करनी। ओके एंड स्टूडेंट्स ये आपका क्लास वर्क हो गया आंसर मैच करने के बाद। देन सेंड मी होमवर्क हियर। ओके इट्स अ टुडेज क्लास वर्क एंड स्टूडेंट्स होमवर्क इज दैट लर्न एक्सरसाइज बी ऑफ दिस चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम योर फेयर जीके नोटबुक। ओके ये आपका होमवर्क है, आपको एक्सरसाइज भी लर्न करनी। एंड स्टूडेंट्स आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम फॉर योर क्लास 1 होमवर्क। ओके बिकॉज I hope that you can solve all these questions of this exercise B by answer because I have explained all answer of this exercise B. Okay तो क्लास वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अपने मन से आप आंसर राइट डाउन कर सकते हैं। एंड लर्निंग वर्क में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके क्योंकि अब आपका लर्निंग वर्क बहुत ही ईजी हो गया। ओके क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन ऑल आंसर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज B. ओके सो आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम फॉर लर्निंग वर्क। ओके सो ऑल स्टूडेंट फर्स्टली कंप्लीट योर क्लास वर्क, कंप्लीट एक्सरसाइज B of this chapter first in your fair GK notebook and send me over here. Thank you.